سے ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن بحال ہو جائے گا۔ پہلی پرواز کراچی سے لاہور کے لیے دوپہر 1 بجے اڑان بھرے گی۔ سول ایویشن کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر انتظامات مکمل، ڈومیسٹک لاؤنج میں آگاہی بینرز نصب، مسافروں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کے لیے نشانات لگا دیے گئے۔ میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں۔ یورپ کے اندر ایک دن کے اندر 800 لوگ، ابھی بھی 500 لوگ مر رہے ہیں، انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں کی، ایئر ٹریول بند نہیں کی، ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کی صوبوں سے ٹرانسپورٹ کھولنے کی اپیل، کہا جن ملکوں میں روزانہ سینکڑوں اموات ہو رہی ہیں وہاں بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے۔ مشکلات کا اندازہ ہے لیکن چین، یورپ یا امریکہ جیسا لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ دہاڑی دار مزدور کو بھوک سے بچانا ہے۔ وزیر اعظم کی SOP پر عمل کرنے کی پھر اپیل، کرونا کیسز بڑھنے کے خدشے کا بھی اظہار۔ سندھ حکومت کا پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے سے انکار۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کہتے ہیں کیا پبلک ٹرانسپورٹ چلا کر ملک کو ووہان یا اٹلی بنانا چاہتے ہیں، جبکہ پنجاب میں پیڑ سے پبلک ٹرانسپورٹ، شاپنگ مالز اور آٹو موبائل انڈسٹری کھول دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں بھی پیڑ سے پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑے گی۔ پیٹرول پمپس 24 گھنٹے کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کا عید سے قبل محدود ٹرین آپریشن شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 24 ٹرینوں کو آپریشن کی اجازت دی جائے گی۔ ٹکٹس کی بکنگ صرف آن لائن ہوگی۔ ریلوے نے سفر کے لیے SOP تیار کر لی۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹے میں مزید 1581 افراد متاثر، تعداد 38,799 ہو گئی۔ مزید 31 افراد چل بسے، اموات 834 ہو گئیں۔ سندھ میں 14,916، پنجاب میں 14,201، خیبر پختونخوا میں 5,678، بلوچستان میں 2,457، اسلام آباد میں 921، گلگت بلتستان میں 518 اور کشمیر میں 108 افراد وائرس کا شکار۔ آپ کو پابند کر رہے ہیں اس کے لیے کہ پبلک پلیسز کے اندر یا ایسی جگہیں کہ جہاں پہ ہجوم ہے اور آپ کو جانا پڑے گا، اور سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنے کے باوجود ہم اس بات کی پابندی اب لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک اب پہننا ضروری ہے۔ عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہریوں کو لازمی ماسک پہننا ہوگا۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی گفتگو، کہا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ پاکستانی کمپنی کورونا ویکسین کی تیاری جلد شروع کر دے گی۔ دنیا بھر کو دوا سپلائی کی جائے گی۔ ISPR کی مدد سے آگاہی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ لاڑکانہ کے کچی محلے کا رہائشی کورونا سے جاں بحق۔ محکمہ صحت کے مطابق 25 سالہ شخص 3 روز سے وینٹیلیٹر پر تھا۔ کچی محلے میں اب تک 8 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ علاقہ سیل۔ پنجاب میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل رمضان عالم بھی کورونا سے جنگ ہار گیا۔ کراچی میں سخت گرمی آنے کو ہے تیار۔ محکمہ موسمیات نے 17 مئی سے 21 مئی کے دوران درمیانے درجے کی ہیٹ ویو کی پیشگوئی کر دی۔ پارہ 39 سے 41 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ آج شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ تربت اور مٹھی میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ۔ عراق سے 250 سے زائد پاکستانی اسلام آباد پہنچ گئے۔ قومی ایئر لائن کے ذریعے پہنچنے والے تمام مسافروں کو سہاوا اور جہلم کے قرنطینہ مراکز منتقل کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے ایک بار پھر شرح سود مزید 1% کم کر دی۔ بنیادی شرح سود 9% سے کم ہو کر 19 ماہ کی کم ترین سطح 8% پر آ گئی۔ مارچ 2020 سے اب تک شرح سود میں 5.25% کمی کی گئی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 46 لاکھ سے زائد متاثر، 3 لاکھ سے زائد جان سے گئے۔ امریکہ میں 88,000، برطانیہ میں 34,000، فرانس اور اسپین میں 27,000، جبکہ برازیل میں 15,000 کے قریب اموات۔ ویکسین کی دستیابی کے لیے امریکہ کا سال کے آخر تک آپریشن وارپ اسپیڈ کا اعلان۔
कांग में एक और नया वायरस चूहों से इंसानों में फैलने लगा। 2 केसेस रिपोर्ट हो गए। मूजी वायरस हेपेटाइटिस ई का बाइस बनता है। हुकाम के मुताबिक इंसान में वायरस की मुंतकली की वजह फिलहाल नामालूम है। लॉकडाउन और एहतियाती तदबीर कोरोना से निपटने के बेहतरीन हथियार, ताइवान और वियतनाम ने साबित कर दिया। 9 करोड़ 70 लाख आबादी वाले वियतनाम में एहतियाती तदबीर के बायस अब तक सिर्फ 300 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक भी हलाकत नहीं हुई। और 2 करोड़ 30 लाख आबादी वाले मुल्क ताइवान में भी सख्त इक़दामात के बायस सिर्फ 440 केसेस ही रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। कुर्बानी का बकरा बनाने वाली बात की तरदीद। विफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। कहा तहकीकात पर कोई एतराज नहीं, एहतसाब हुकूमत और अपोजिशन दोनों का होना चाहिए। एहतसाब अदालत में ज़ेरे समाअत तोशा खाना रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी 29 मई को तलब, जबकि नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ रायवंड जाती उम्रा आराजी केस इंक्वायरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। साहिवाल में खेत में हल चलाने पर फायरिंग, 3 अफराद जहां बहक, 3 जख्मी। ओकाड़ा में भी देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 2 खवातीन जहां बहक, जबकि चिनियोट में अंधे कत्ल का मामला हल कर लिया गया। बीवी ने आशना के साथ मिलकर शौहर को कत्ल किया, मुल्जिमान गिरफ्तार। हमारे 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सामसे और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। 24 घंटे में मजीद 1581 अफराद वायरस से मुतासर हो गए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 38,799 हो गई है। वायरस से मजीद 31 अफराद चल बसे, अमवात भी 834 हो गई। सिंध में वायरस के सबसे ज्यादा 14,916, पंजाब में 14,201 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलोचिस्तान में 2,457, इस्लामाबाद में 921, गिलगित बाल्टिस्तान में 518 और कश्मीर में 108 अफराद वायरस का शिकार हैं। बढ़ते केसेस और अमवात के बाद लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजर सानी नागुज़ीर नजर आती है। तो लॉकडाउन में नरमी का सिलसिला जारी है और आज से डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो रहा है। पहली परवाज दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। एयरपोर्ट पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जगह जगह हिदायत आवेजा कर दी गई हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए 6 फीट का फासला रखने के निशानात भी लगाए जा चुके हैं। मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना भी लाजमी करार दे दिया गया है। अंदरून मुल्क ज़राए आमदरफ्त की बहाली शुरू, डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। ये ऑपरेशन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर में शुरू हो रहा है। पहली परवाज आज दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। शाम 4 बजे लाहौर से कराची वापसी के लिए परवाज रवाना होगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 20% डोमेस्टिक ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। हमने मुत्तफिका फैसला किया है कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए जाएं, जो कि 21 मार्च से सस्पेंड कर दिए गए थे। तो अब महदूद डोमेस्टिक ऑपरेशन हम शुरू कर रहे हैं। सिविल एविएशन ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डोमेस्टिक लाउंज में आगाही बैनर्स नस्ब किए जा चुके हैं। मुसाफिरों के दरमियान 6 फुट का फासला रखने के लिए निशानात भी लगा दिए गए। मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को अहकामात दे दिए गए। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल फ्लाइट की बंदिश में मजीद 16 दिन की तौसीह कर दी है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के मामले पर 1-2 सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने सूबों से ट्रांसपोर्ट खोलने की अपील की है। कहा जिन ममालिक में रोजाना सैकड़ों अमवात हो रही हैं, वहां भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है।
वजीर आजम का कहना था कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की मुश्किलात का भी अंदाजा है, लेकिन चीन, यूरोप या अमेरिका जैसा लॉकडाउन नहीं कर सकते। दिहाड़ीदार मजदूर को भूख से बचाना है। उन्होंने दुकानदारों और आवाम से एसओपीज पर अमल दरामद की, फिर अपील की। कोरोना केसेस बढ़ने के खदशे का इजहार भी किया। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर सकते जो यूरोप और अमेरिका में और या चाइना ने किया। हमारा एक मसला है, वहाँ इन मुल्कों के अंदर वो गुर्बत नहीं है जो पाकिस्तान में है। ये एहसास होते हुए कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है और हमें डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और केसेस बढ़ेंगे, ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। केसेस बढ़ने हैं अभी। बाकी लोग तो अपनी शायद इकोनॉमी को बचा रहे हों, हम तो अपने लोगों को भूख के मरने से बचा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि आप खोलें। जो भी कारोबार खोलेगा उनके जो मालिक होता है उसके ऊपर हम जिम्मेदारी दे देंगे कि आपने ये कदम उठाने हैं, ये शराइत है जिसके ऊपर चल के आपने अपनी फैक्ट्री खोलनी है एसओपीज के साथ। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। यूरोप के अंदर एक दिन के अंदर 800 लोग, अभी भी 500 लोग मर रहे हैं। उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रैवल बंद नहीं की। हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? हम पाकिस्तानियों ने बाकी दुनिया की तरह भी इस वायरस के साथ गुजारा करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए वजीर आजम की अपील को सिंध ने मुस्तरद कर दिया है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का कहना है, वजीर आजम साहब शायद मुल्क को वुहान या इटली बनाना चाहते हैं। कोरोना केसेस रोजाना बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोली जा सकती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए वजीर आजम की अपील का सिंध ने दे दिया कोरा जवाब। कहा ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने कहा, वजीर आजम इमरान खान हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन वजीर आजम साहब क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलवाकर मुल्क को वुहान या इटली बनाना चाहते हैं? वजीर आजम साहब, अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे तो किसी अक्लमंद से मशवरा जरूर कर लें। खदशा है कि लॉकडाउन में नरमी की वजह से मुल्क इटली न बन जाए। उन्होंने कहा, रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं खोल सकते। एसओपी पे होने के बाद जब फैक्ट्री ऑनर्स को इजाजत दी तो उन्होंने एसओपी पर अमल नहीं किया। बार बार की अपील के बावजूद भी ताजिर एसओपी पर अमल नहीं करवा सके। इसके नताइज सब ने देख लिए। अवैस शाह का कहना है कि वजीर आजम ने अपनी तकरीर में खुद एतराफ किया कि नरमी की वजह से लोग एसओपी पर अमल नहीं कर रहे। उन्होंने वजीर आजम को साथ मिलकर काम करने की पेशकश कर दी और कहा, इस वक्त सूबों को आपकी मदद की जरूरत है। पंजाब और केबीके में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोल दी जाएगी। केबीके में पेट्रोल पंप्स भी 24 घंटे के लिए खुल जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों का लॉकडाउन में नरमी का फैसला। पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसओपीज के तहत खोलने का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल करने की उसूली मंजूरी दी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए हुकूमती एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। हमने ये तय किया है कि आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को सिफारिशात भिजवा रहे हैं कि एसओपीज के साथ ये ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाजत दी जाए और इसके लिए हतमी तारीख जो है उसका फैसला चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए भी एसओपी बना लिए गए, जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पैदावारी इंडस्ट्री को हफ्ते में 7 जबकि शोरूम्स को 4 दिन काम की इजाजत होगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी वफाक से मुशावरत के बाद पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर के मुताबिक कमिश्नर्स ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर एसओपी तश्कील देंगे, जबकि तेल की नई कीमतों के मुताबिक किराया वसूल होगा।